बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग इट इज़ द प्रोसेस एंड विच द ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम्स ए जेली लाइक मास few minutes after it is shed out. Blood clotting आगा प्रोसेस कि ब्लड पल फ्लूइडिटी लॉस की, यानी द ब्लड ची कम नॉर्मल दागे पीएच थे या दागे विस्कोसिटी दा या दागे नूर कि सुमरा फिजिकल प्रॉपर्टी दी नो आगा फ्लूइडिटी लॉस की दागे न यू जेली लाइक सब्सटेंस जुड़ शी। Jelly like substance the julshi in a very short period of time and after it is shed out. Aw again pas chi kam de aga judaishi. No blood clottings ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ब्लड जो है अपनी फ्लूइडिटी जो है उसको लॉस करेगा। इज़ अ रिजल्ट ऑफ ए जेली लाइक सब्सटेंसेस फॉर्म विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फिर ये सिपरेट हो जाएगा, एक क्लॉट मास बन जाएगा। वैसे नॉर्मल जो क्लॉटिंग टाइम है इट इज़ बिटवीन 8 to 15 मिनट्स, 8 से लेके तकरीबन 15 मिनट्स, 8 से लेके 15 मिनट्स में आपका ब्लड जो है ठीक है इसका क्लॉटिंग होना शुरू होता है। सो इट आल्सो डिपेंड अपॉन ऑन द नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स which is present in your blood cells. Blood clotting की जमू सरा the simple mechanism process blood clotting संगे कीगी. So this is very easy. तासु तो the picture की खकारी. So first of all the blood vessel is punctured. When the blood vessel is punctured, so after puncture of blood vessel there will be the formation of plug. Platelet form a plug. Because during rupturings or puncture of blood vessels, the platelet counts or the production of platelets, it become activated. When the platelets become activated, so it form a plug, and then the platelets and the damaged tissue cells release prothrombin activators, which initiate a cascade of enzymatic reactions. So after that, a fibrin thread form and trap the red blood cells. So thrombin, you know thrombin is a proteins. Thrombin is naturally occurring enzyme that convert fibrinogen into fibrins. अब फिब्रिन का काम ये होता है, फिब्रिन जो है एक एंजाइम का नाम है और इस एंजाइम का काम ये होता है कि ये फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में, ठीक है, विच इज़ द इंटीग्रल स्टेप इन द क्लॉट फॉर्मेशन में थ्रोम्बिन जो है एट प्ले वेरी की रोल। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, इसको प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहा जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन एंड देन दिस थ्रोम्बिन्स इट विल फॉर्म द इनसोल्यूबल फिब्रिन एंड सोल्यूबल फिब्रिनोजेंस। फिब्रिनोजेन सोल्यूबल है और फिब्रिन इनसोल्यूबल है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि व्हेनेवर योर ब्लड वेसल इज पंक्चर, कल जिता ब्लड वेसल पंक्चर के दागे द पंक्चर के दो सर प्लेटलेट एक्टिवेट शी, आगा प्लेटलेट्स ची कम दे आगा यो प्लग जुड़ की, यो प्लग यो मास जुड़ की जमू सरा, ठीक दा, यो क्लॉटेड मास होती जुड़ की लका संग ची मावे थ्रोम्बिन ची कम दे रा जमू सरा जमुंगा प ब्लड के ऑलरेडी मौजूद दे दागे एंजाइम दे ची दा जमू सरा फिब्रिनोजिन कन्वर्ट कई फिब्रिन था
او دا فبرین دا ډیر یو اهم د یو اهم کرداری چې زموږ سره په تھرڈ سٹیپ کی چکم پلیٹلیٹس تھی، آپ کے جو پلیٹلیٹس ہیں، آپ کے جو ڈیمیٹ ٹیشو سیلز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پروتھرامبین ایکٹیویٹر کو ریلیز کرتا ہے، کلیئر ہے؟ تو جب وہ پروتھرامبین ایکٹیویٹر کو ریلیز کرتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں دیر از اے کاسکیڈ آف انزائمیٹک ریئیکشنز آکر، اور اس کے ریزلٹ میں ہمارے باڈی میں کاسکیڈ آف ریئیکشنز اور آکرز. نو چې کله زموږ سره ټیشوز ډیمیج شي او د هغې په ریزلټ کې زموږ سره پروتھرامبین د هغې د ریلیز سره پروتھرامبین ایکټیویټر راشي او زموږ په باډي کې انزایمیټک ریئیکشنز انیشیټ کړي. په فورث نمبر سټیپ کې به زموږ سره فیبرین یو تھریډ جوړیږي، تاسو ته په دې سټرکچر کې ښکاري. کله چې دا فیبرین تھریډ جوړ شي، تھریډ فارم جوړ شي، نو د دې فیبرین تھریډ فارم چې کوم دی دا زموږ سره دا ریډ بلډ سیل دا کیپچر کی، دا ټریپ کی وینیز، نو یو کلاٹڈ ماس جوڑ شي. نو زمانہ دی خبری مقصد دا دے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بلڈ کلاٹ بنتا ہے، اس بلڈ کلاٹ بننے میں تھرومبین جو ہے یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. سمجھ گئی؟ سو دس از ویری سمپل. 4 سٹیپس میں یو کین رائٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے؟ پیپر میں اگر اس طرح آپ لکھیں کہ ان دی انیشیل پیج your blood vessel, when your blood vessel is punctured, so after that the platelet form a plug, and then these platelets and the demate tissues, it will release a prothrombin activators, and after that it will initiate a cascade of enzymatic reactions. So as a result of fibrin thread is formed, and when the fibrin thread is formed, so it will trap the red blood cells, RBC. So this was all about the blood clotting. अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एंटीकोगुलेंट्स पे है. तो एंटीकोगुलेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड्स इज कॉल्ड एंटीकोगुलेंट. एंटीकोगुलेंट वो सब्सटेंस है जो आपके ब्लड को कोगुलेशन से बचाता है, ठीक है, विच कैन स्टॉप, विच कैन प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड एज एंटीकोगुलेंट. एंटीकोगुलेंट वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो आपके ब्लड को कोगुलेट करने से बचाता है. सबसे जो इम्पॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट है दैट इज़ हेपरीन. हेपरीन जो है ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट एजेंट्स है जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है, और इस एंटीकोगुलेंट का काम ये होता है कि इट विल प्रिवेंट योर ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग. ये आपके ब्लड को क्लॉटिंग से रोकता है. इफ द ब्लड क्लॉट्स टू ईजली, सो द रिजल्ट कैन बी थ्रोम्बोसिस. कचरी जमू सरा ब्लड क्लॉट पासाना मानी जुड़ेगी, जर जुड़ेगी दागे पर रिजल्ट के बाद हम सारा थ्रोम्बोसिस की, ठीक था. ब्लड क्लॉट जमू सरा ईजली पासाना मानी और क्लॉट जुड़ेगी नो, तो आप कह सकते हैं कि द रिजल्ट कैन बी थ्रोम्बोसिस. सो क्लॉटिंग एन अनडैमेज ब्लड वेसल्स. क्लॉटिंग हमेशा चिकम जमू सरा की दफा अनडैमेज ब्लड वेसल, आपके ब्लड वेसल जो है दे आर नॉट डैमेज्ड, but still thrombosis is occur in a short period of time, so this is also abnormal condition. If the blood take too time to clot, अगर आपका ब्लड जो है क्लॉट करने में ज़्यादा टाइम लेता है तो इसका मतलब ये है कि देयर विल बी हैमरेज, ब्लड लॉस होगा, और जब ब्लड लॉस होगा तो डेफिनेटली क्लॉटिंग टाइम डिस्टर्ब होगा. द ब्लड विल टेक लॉन्ग टाइम टू क्लॉट. तो दोनों हमारे पास जो है ये एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट जो है अगर शॉर्ट टाइम में आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में थ्रोम्बोसिस वाक़या हो, ठीक है. तो क्लॉटिंग में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि
इसमें आपका जो ब्लड वेसल हैं अनडैमेज ब्लड वेसल्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये असल में ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। इस पे इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट क्लास है इंशाल्लाह वो इम्यूनिटी की हो। थैंक यू।